Am I audible to you? Yes, good morning. Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. So, dear students, we have already finished two topics, two chapters from our syllabus. Now, today, I will discuss with you third. I will start third chapter, that is computer networks. Okay. So, first point from the computer network, that is what is meant by network, or introduction to the computer network. Guys, I will share the screen. So here, the computer network. So network, when we discuss about the network, so network, it is nothing but it is the uh, group of computers which is connected with each other through the wires. So some group of computers which is connected through the wires, it may be cables or optical fibers or optical links, that various devices can interact with each other through the network. डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, इसके इसलिए हम कंप्यूटर नेटवर्क वहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है. सो here computer network is nothing but it is a group of computers. So this group of computers, it is connected with each other. So this group connected with each other through the some wires or some cables or optical fibers or optical links, so that various devices can interact. ये interact करना, that is very important. That is computer communication, data communication भी बोलते हैं इसको. Communication करना, interact करना. So through this network we can interact with the each other. So aim of this computer network, दैट इज मेन उसका पर्पज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का, इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस को शेयर करना. ओके. शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस अमंग वेरियस डिवाइसेस. डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करना, दैट इज द मेन एम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. So in the case of computer network technology, there are different types of networks. We will discuss later on some local area network, then metropolitan, that is man metropolitan area network, that is wide area network. So these there are different types of network we will discuss later on. So these networks vary from simple to complex. कुछ नेटवर्क सिंपल होते हैं, कुछ नेटवर्क कॉम्प्लेक्स भी होते हैं वहाँ पे. ठीक है. So they are different types. They may be simple or may be complex. So a set of devices, in short we can say that a set of devices often mentioned as nodes. डिवाइसेस को कंप्यूटर को नोड भी बोला जाता है. ठीक है. So devices also, these computers are also called as nodes. Connected by media link is called a network. नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर है वो कनेक्टेड होंगे थ्रू सम लिंक. कुछ लिंक के द्वारा, या फिर कुछ वायरिंग के द्वारा वो कनेक्टेड होंगे, या फिर ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा वो कनेक्टेड होंगे, या फिर वायरलेस लिंक के द्वारा भी वो कनेक्टेड हो सकते हैं. So these are, the connectivity is very important in the computer network. Okay.
So computer also called as in the connectivity they are called as nodes. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा ये, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर है उसको नोड्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। So do you understand this? Because this is a new topic. मैम Okay, yes. मैम अपन कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं? Third chapter. थर्ड चैप्टर। हाँ, yes. ओके मैम। Who are you? मैम युवराज चौहान। आपने पहले लेक्चर नहीं अटेंड किया? मैम आई हैव कंटिन्यूड From this lecture? no earlier I also joined the lecture. Okay. So this is the third chapter, dear students, because I got your optional subject list and very few students are joined for the lecture. That's why more and more students should join the lecture. That is very important because from this chapter very important part starts. So networking, that is very important part in examination. Most of the question from this computer network. Okay. So this is the introduction to the computer network. Now we proceed the components of the network. अब इस नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से? दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क। ये बेसिक कंपोनेंट्स है। एक तो यहाँ पे सेंडर होना चाहिए, देन रिसीवर होना चाहिए क्योंकि एक पीसी से दूसरे पीसी पर वहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, जा रही है मैसेज के थ्रू। मीडियम होना चाहिए, देन प्रोटोकॉल, कुछ रूल्स होने चाहिए और प्रोटोकॉल में वहाँ पे रूल्स रहते हैं या स्टेप्स रहते हैं उसके। So the message should be there. So these are some components of the network. ये डायग्राम आप भी ड्रॉ कर लेना आपके नोट्स में। जितने भी मैंने नेटवर्किंग के डायग्राम है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। ऑफिस में डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नेटवर्किंग में आपको डायग्राम ये ड्रॉ करनी है आपकी बुक पे, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अभी इसका हम डिटेल देखेंगे नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। Now, message. What is the message that we transmitted from one computer or one node to another node? Okay, from one computer to another computer. So the message is the information or data to be communicated. Message क्या है? Information है या कुछ data है जो कि हम send कर रहे हैं, ठीक है। So popular forms of the information include text message भी हो सकता है, simple text message, या कुछ नंबर के फॉर्म में हो सकता है, देन कुछ पिक्चर्स भी हो सकते हैं उसमें, ऑडियो भी हो सकता है या फिर वीडियो, मल्टी मीडिया वी कैन यूज इन द मैसेज। ओके, देन सेंडर। सेंडर कौन है? सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा मैसेज। जो सेंड करता है उसको सेंडर बोला जाता है। इट कैन बी अ कंप्यूटर, एक तो कंप्यूटर होगा या फिर वर्क स्टेशन होगा, बड़ा कंप्यूटर होगा, या फिर टेलीफोन हैंडसेट भी हो सकता है, वीडियो कैमरा हो सकता है, सो ऑन, सो मेनी टाइप देयर वी कैन कम्युनिकेट। देन रिसीवर। रिसीवर, इट इज ऑल्सो अ डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। जो मैसेज रिसीव करता है दैट इज द रिसीवर। ओके, so it can be a computer, workstation, telephone handset, television और so on. Okay. So ये तो कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है या टीवी सेट हो सकता है, कुछ भी। सो sender, message sender and receiver, these are very important component of the network. Then there are more components here. The transmission medium. मीडियम कौन सा है? जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो मैसेज, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसमिट कर रहे हो, तो मीडियम इट इज द फिजिकल पाथ। मीडियम क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज अ फिजिकल पाथ by which a message travel from
सेंडर टू रिसीवर। इस पाथ में क्या हो रहा है, एक सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जा रहा है, ट्रैवल हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। So some example of transmission media includes वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर वायर भी हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल थ्रू दो पीसी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल भी हो सकती है, या रेडियो वेव्स जो कि वायरलेस मीडिया भी वहाँ पे हो सकती है। आजकल तो ज़्यादा वायरलेस मीडिया मीडिया ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि केबल का यूज़ थोड़ा कम किया जाता है। लैंड में ज़्यादा केबल का यूज़ वहाँ पे किया जाता है, जो कि सेम बिल्डिंग में अगर आपको शेयर करना है तो वहाँ पे लैन हो सकता है। देन प्रोटोकॉल्स these are the rules. Protocol, it is a set of rules that govern data communication. एक प्रोटोकॉल क्या है, ये रूल्स है, आपको स्टेप वाइज वहाँ पे आपको दिया है रूल्स। सो इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये एक टाइप का एग्रीमेंट है, कैसे आपको डेटा सेंड करना है। सो विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। विदाउट प्रोटोकॉल दो डिवाइस एक तो कम्युनिकेट हो सकते हैं, लेकिन वो कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो कनेक्ट होना और कम्युनिकेट करना ये अलग अलग पार्ट है। So just as a person speaking French cannot be understood by the person who speaks the Japanese. अगर दो पर्सन है वहाँ पे, एक तो फ्रेंच बोलता है या जापानीज बोलता है दूसरा, तो उनके बीच कम्युनिकेशन हो पाएगा नहीं। वहाँ पे आपको गाइड लगेगा, एक तो कोई तो गाइड लगेगा जिसकी लैंग्वेज उसकी वहाँ पे ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, मीडियम लगेगा प्रॉपर, तो तभी वो ठीक तरह से कम्युनिकेट करे। कनेक्ट नहीं हो सकते, कम्युनिकेट नहीं हो सकते वहाँ पे। ठीक है, सो प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर प्रोटोकॉल शुड बी यूज्ड इन द नेटवर्क। देन एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, इसके एडवांटेजेस। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। सो फर्स्ट एडवांटेज, सेंट्रल स्टोरेज ऑफ द डेटा। डेटा का स्टोरेज वहाँ पे आप कर सकते हो। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेंट्रल नोड, नोड यानी जो कि कंप्यूटर है उसको नोड बोला गया है। ठीक है, सो this central node that can share the data and made available to each other and every user in an organization. So ऑर्गेनाइजेशन में जितने यूजर है जहाँ पे कनेक्टिविटी है कंप्यूटर्स की, सो वहाँ पे कंप्यूटर फाइल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देन एनी वन कैन कनेक्ट टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो रेंज में देर इज अ निग्लिजिबल रेंज ऑफ एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क। अभी जो है कुछ जगह पर रेंज प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क। बहुत सारे पीपल्स, एवरी पीपल कैन, एनी वन कैन कनेक्ट विद द कंप्यूटर नेटवर्क इफ दे हैव सम प्रॉपर कनेक्टिविटी। अगर उनके पास कुछ प्रॉपर कनेक्टिविटी है तो वहाँ पे वो कनेक्ट हो सकते हैं। देन फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी हम हमारे पास नेटवर्किंग है या कुछ कोई भी नेटवर्क अवेलेबल है, सो वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम वेरी इजीली इन अ लेस टाइम। फ्यू सेकंड में हम हमारा डेटा देख सकते हैं, या फिर इंटरनेट से भी, जो भी वाइड एरिया नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, बड़ा नेटवर्क है, सो उसके थ्रू हम एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन, एनी ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व थ्रू द इंटरनेट। Then the reliability of the data. So reliability implies the backing up of the information. अगर आपके कुछ डेटा स्टोर है, ड्यू टू सम रीजन इक्विपमेंट क्रैश, अगर आपका कुछ डेटा वहाँ पे स्टोर है, तो बैकअप अगर आपका उस डेटा का रह गया, बैकअप अगर होगा उस पीसी को, तो वो डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ओके, सो ऑन द पीसी
The another duplicate similar information is accessible on another workstation. अगर एक पीसी पर कुछ डेटा क्रैश हो गया तो दूसरे पीसी पर उसकी उसका बैकअप वहाँ पे हो सकता है. So reliability, that is very important in case of the computer network. Okay, so we can see our data or use our data without any interruption. So it is highly flexible. So flexible means anywhere, anytime we can access the network. So it can be, this innovation is truly adoptable because the client or the receiver, sender or receiver is available at the same time. So that's why it is very easy to access our data through the computer network. Security through authorization. Now, the security is very important when we are using the network to our devices. So, security and protection of information, it is settled through the system. System में कुछ उसकी इंस्टॉलमेंट रहती है. जैसे कि हम नेटवर्क किसी कंप्यूटर का है तो वहाँ पे एंटीवायरस डाल सकते हैं. So in this way we can secure our computer through the from the viruses also. So protection or protection of the data, protection of the record, that is very important. So security can be maintained through the different types. Now some disadvantages of this computer network here. So here I mention these disadvantages of the computer network. It lacks the robustness. So robustness means the strong capacity. So sometime if a PC systems principal some server separate, server से अगर कुछ PC उस वहाँ पे separate कर दिया, so the whole framework would end up in a very futile means here very few second. वहाँ पे उसका framework भी वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है. So the connectivity to the server, that is very important in case of some PCs. So in this case it lacks the robustness. वहाँ पे network fail हो सकता है sometime. It lacks independence. Sometime so PC organizing includes a procedure. वहाँ पे procedure रहता है कुछ network connectivity के लिए. So it lacks the independence. उसका independence, उसका freedom वहाँ पे नहीं रहता. वो वर्क स्टेशन या सर्वर को कनेक्ट रहता है वो पीसी. Then virus and malwares. So in the PC, personal computers, there is the possibility of the viruses or the malware viruses. So due to that, some files may get crashes or a file may corrupted. There is the possibility of corruption of the files. Then cost of the network. नेटवर्क का कॉस्ट भी समटाइम थोड़ा बड़ा हो सकता है ड्यू टू दैट. सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस. सो वहाँ पर रोबस्टनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, वायरस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कॉस्ट का. देन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज importance of the networking. So what is the importance of in our day-to-day life? So networking is, it is beneficial to our careers. So our if we are looking for a job or connecting with the some professionals, it can give our very good help. अगर अगर आप कुछ जॉब सर्च कर रहे हो थ्रू इंटरनेट या ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज दे सकता है. सो nowadays there is a need of the computer network in our day-to-day life, uh, because
विदाउट नेटवर्क वी कांट कनेक्ट टू द वर्ल्ड. वर्ल्ड को हम कनेक्ट नहीं हो सकते. हम ऑनलाइन भी लेक्चर ले रहे हैं तो हमारे पास कनेक्टिविटी वहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है. So here are the some possible some following need for the computer network. So first need, that is information exchange. Information share करनी है हमको. कुछ exchange the data and information between individual users. User के between हमको वहाँ पे information share करनी है. So it is necessary to interconnect the individual users with the computers or some through the mobile devices also. Okay. Then resource sharing. हम वहाँ पे resource को share करते हैं. So the cost of the computers nowadays very come down. कॉस्ट अभी कम हो रही है कंप्यूटर्स की या लैपटॉप की भी, और इजीली अवेलेबल है अभी. छोटे छोटे लैपटॉप है, नोटबुक कंप्यूटर्स भी हैं आप लोगों के लिए. हाउएवर द कॉस्ट ऑफ द लेसर प्रिंटर की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन प्रिंटर सभी को इतना इमरजेंसी वर्क के लिए नहीं लगता. हम प्रिंटर को थोड़ा सा कोई भी इंडिविजुअली वहाँ पे परचेस नहीं करते. ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा सा रेट हायर रहता है. देन एप्लीकेशन शेयरिंग, कोई भी एप्लीकेशन हो वहाँ पे शेयर कर सकते हो. देन यूजर कैन कम्युनिकेट थ्रू देयर डिवाइसेस, मोबाइल और पीसीज आल्सो. So in this way, in our day-to-day life, in our regular life, we need the computer network. Now, there are different types of computer network. अभी इस नेटवर्क के बहुत सारे टाइप्स हैं. यहाँ पे जो मेन टाइप है 3 है. पैन भी दिया है मैंने यहाँ पे, पर्सनल एरिया नेटवर्क. शॉर्टकट में यहाँ पे आप देख रहे हो, ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है. एक छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैंने दिया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का. ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, इसकी वजह से आपको इन वेरी few seconds you can remember these types. LAN means here local area network. LAN का लॉन्ग फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क. एग्जाम पे आपको पूछ सकते हैं LAN क्या है. ठीक है. देन MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. Then WAN, wide area network, and PAN stands for personal area network. So these are in short I give. In further slides, we discuss here this LAN, MAN, WAN, and PAN in detail. Okay. Now proceed to the first type, that is LAN, local area network. अभी LAN के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम. So local area network. So it is a group of computers connected to each other. ये जो कंप्यूटर का ग्रुप है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट रहता है. दैट इज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस. बिल्डिंग या ऑफिस में वहाँ पे कनेक्ट रहता है. एक ही बिल्डिंग में अगर कुछ कंप्यूटर कनेक्ट हो तो उसको लैन बोला जाता है. लैन है वहाँ पे, जो कि केबल थ्रू, अगर वायर्ड लैन हो तो केबल थ्रू कनेक्ट रहता है. अगर वायरलेस है तो वहाँ पे रेडियो वेव्स, वहाँ पे राउटर या कुछ अदर डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू दैट लोकल एरिया नेटवर्क. या ऑफिस में भी ये यूज किया जाता है. लैन इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स. पीसी को कनेक्ट करता है थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल. केबल भी रहते हैं वायर्ड लैन में. सो इट इज लेस कॉस्टली. इसका कॉस्ट थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू द अदर नेटवर्क्स. So it is built with the inexpensive hardware such as hubs, network adapters and Ethernet cables. ये जो है कनेक्टर्स है, हब जो है इट इज अ कनेक्टिंग डिवाइसेस है. यहाँ पे नेटवर्क एडॉप्टर्स, एथरनेट केबल्स रहते हैं वहाँ पे. So data is transferred at an extremely faster rate in the local area network.
लोकल एरिया नेटवर्क में आप डेटा को फास्टली वहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर शेयर कर सकते हो. सो लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी डेटा की मेंटेन की जाती है. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी आपको दिया है. ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो. 4 पीसी निकालो, इन बिटवीन दैट कनेक्ट उसका लिंक दिखाओ और लैन लिखो. ठीक है. Now, characteristics of the LAN. So, local area network, it connects the computers in the same building or same office. So, coverage area, it is generally few kilometers. Very less kilometers, few kilometer coverage area. Distance बहुत कम रहता है in between that computers. That is the characteristic of the local area network. So using different dedicated transmission medium, the you can achieve the transmission rate of 1 megabits per second to 100 megabits per second. इसका ट्रांसमिशन रेट कौन रेंज क्या है इसकी 1 MB to 100 MB. Okay. So, for further development of land technology, it is currently being developed toward the higher speed. अभी थोड़ा सा स्पीड भी उसका बढ़ गया है. कहाँ तक 1000 MB मेगाबिट्स पर सेकंड. ये जो मेगाबिट्स पर सेकंड है, बैंड विड्थ है. हमें कितना पर सेकंड हम कितना डेटा एक्सेस कर सकते हैं उसकी बैंड विड्थ है बिट्स पर सेकंड. So in LAN, you can run the multiple devices to share the transmission media. LAN में आप multiple devices वहाँ पे share कर सकते हो. ठीक है, उस पर का डेटा शेयर कर सकते हो LAN में. Then you can use the different topology, mainly bus and ring in LAN. अब ये topology subject क्या है? कंप्यूटर कैसे कनेक्ट वहाँ पे रहता है. How the computer are connected to each other, in which way, that is called as topology. So topology में बस एंड रिंग टोपोलॉजी वहाँ पे यूज की जाती है. इसका डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये आपके सिलेबस में है टोपोलॉजी. ठीक है. द कम्युनिकेशन क्वालिटी इज बेटर इन लैन. लैन में कम्युनिकेशन क्वालिटी बेटर है. The transmission error rate is also low as compared to the wide area network. Transmission में कुछ error ज़्यादा नहीं आते. LAN supports a variety of communication transmission medium such as Ethernet cable. Ethernet cable के थ्रू आपका communication हो सकता है, या फिर thin cable भी रहते हैं, thick cable भी रहते हैं वहाँ पे, twisted pair cable भी रहते हैं, या fiber या फिर wireless transmission, wireless LAN भी रहते हैं वहाँ पे. So LAN usually has a low cost installation, expansion and maintenance cost is also low, and it has relatively simple and good scalability. इसका maintenance easily we can maintain the LAN. Then the components of the LAN. LAN के कौन से component है वो भी important है. So the network interface cards, NIC. So NIC, it is the interface card है यहाँ पे. So it is used to connect the computer to the network cable. ये क्या करता है network interface card? ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे यूज किया. युवराज चौहान, why you left every time left and why you admit after that? आपका इन बिटवीन लेक्चर मिस नहीं होता क्या? युवराज चौहान, अभी आप ज्वाइन हो रहे फिर से.
आप लोगों को एंट्री नहीं देनी चाहिए बाद में, 5 मिनट्स के बाद एंट्री नहीं देनी चाहिए, 5 मिनट्स में जितने स्टूडेंट आते हैं उतने ही लेनी चाहिए. So network interface cards, these are used to connect the computer to the network cable. So these are the very important component of the LAN. The network cables के थ्रू क्या करते हैं हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं. So connectivity is done by the some cables. Then most LANs are built with the unshielded twisted pair. ये केबल का ही टाइप है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. तो ट्विस्टेड पेयर में दो केबल रहते हैं वहाँ पे, उसका ट्विस्ट वहाँ पे यूज किया जाता है. फाइबर ऑप्टिक केबल भी रहते हैं जो कि वेरी रिलायबल, वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, फास्ट होता है उसका ट्रांसमिशन जो है ऑप्टिकल केबल के थ्रू. फाइबर ऑप्टिक अगर आप यूज करें तो आपका ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू द अदर केबल्स इट इज फास्ट. देन द एडवांटेजेस ऑफ दिस लैंड, इसके एडवांटेजेस या यूजेस, अगर आपको यूजेस भी पूछा गया तो वो ये एडवांटेजेस और बेनिफिट वहाँ पे कोई भी अगर आपको नाम चेंज करके भी पूछा गया एग्जाम में, बेनिफिट एडवांटेज या फिर यूजेस, यही लिखना है आपको. दीज आर द सम बेनिफिट्स. सो बेसिक लैंड इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट कॉस्ट टू मच, ये इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, इसलिए it is very easy to implement the land. So it is easy to control and manage the entire land. It is available in a small region. इसको कंट्रोल करना और इजीली मैनेज कर सकते हैं हम. द लैंड कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इजी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ required protocols. The systems or devices connected to the LAN communicates at a very high speed. हाई स्पीड रहता है वहाँ पे, डेटा हम हाई स्पीड से सेंड कर सकते हैं. इट सपोर्ट्स 10 Mbps, 100 Mbps और 1000 megabits per second also. Okay. Then the gigabit internet ethernet versions are also very fast. gigabit में भी इसका कुछ वर्जन्स आ रहे हैं. ठीक है. So here are also the advantages and the benefits are also there. So with the help of the file servers connected on the LAN, sharing of the files or folders is very easy and efficient. Then it is easy to set up security protocols to protect the LAN users. Security protocols का use कर सकते हैं हम वहाँ पे for protection of the LAN. Then it is easy to share some common resources such as printers and internet lines among the multiple LAN users. वहाँ पे प्रिंटर भी शेयर कर सकते हैं हम, इंटरनेट लाइन के थ्रू डेटा शेयर कर सकते हैं. Then LAN users do not require their hard disk. हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, पर सी डी ड्रॉम ड्राइव की ज़रूरत नहीं है. Application software such as MS Office, then antivirus, Adobe Reader are stored at one system and are shared to the other users through the LAN. अगर एक सिस्टम पर MS Office अवेलेबल है या फिर एंटीवायरस अवेलेबल है, एडोब रीडर अवेलेबल है, तो वो दूसरी सिस्टम पर हम अगर लैन में हो बोथ पीसीस तो वहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं, या एप्लीकेशन भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं. Then there are some disadvantages of this LAN. So land covers a small geographical area, large area में हम वहाँ भी सेंड नहीं कर सकते, ये भी उसका disadvantage है. Then security issues are there are some for the big concern, security issue है वहाँ पे. It is difficult to set up and maintain the LAN and required skilled technicians. Then in the server based LAN architecture, if server develops some fault, अगर सर्वर बेस्ड लैन आर्किटेक्चर हो तो सर्वर डाउन हो गया तो बाकी का वहाँ पे डाउन हो सकता है. देन अपीयरेंस ऑफ द वायरस इन वन सिस्टम कैन स्प्रेड वेरी फास्ट. वायरस भी उसी तरह से वहाँ पे स्प्रेड हो सकता है, दूसरे भी सिस्टम में वो स्प्रेड हो सकता है. सो दीज आर सम disadvantage of the LAN system. So guys, do you understand this introduction of the networking?
Yes, ma'am. Okay, so you have to draw this some diagrams of the LAN and some networking components of the networking system. So if diagram भी आप लोगों को ड्रॉ कर दिए एंड नोट्स भी बनाने हैं सभी को सभी ने अपना नंबर एंटर कर दिया रोल नंबर Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके So guys, this is all about the some introduction of the network and the components of the network and the types of network that is LAN, MAN, WAN and PAN. So हमने आज की क्लास में लोकल एरिया नेटवर्क इन डिटेल डिस्कस किया है इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं अच्छी तरह से so in next lecture we will discuss the metropolitan area network and the wide area network man and van जिसके नोट्स मैं आपको आज सेंड कर दूंगी आफ्टरनून okay so have a nice day to all of you and I will leave the meeting so thank you guys Ma'am, exam कधी आहे? exam unit test in January first week Okay. study that MCQs Ma'am, study date करो I don't know date okay your class teacher I knows फर्स्ट वीक में है बस ओके ओके हैव अ नाइस डे